Hello everyone, welcome all of you. This is our new lecture series on international relations. So from today onwards, I will be starting our new topic, that is India's neighborhood relations. Okay. And in India's neighborhood relations, I will be starting India-Pakistan relation. Okay. And इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पे जाने से पहले कुछ बैकग्राउंड मैं बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी को पता होना चाहिए, तभी आपको इंटरनेशनल रिलेशन समझ में आएगा। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। सो इन दिस लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। यस, that means how Pakistan got created, okay, demands and all, everything. Okay, so political history of Pakistan. So let's start this topic, political history of Pakistan. Now you can see this map, okay, Pakistan's map, okay, and you can see this Kashmir area also. See this Kashmir area, Pakistan POK region, Pakistan controlled Kashmir, and ये जो एरिया है गिलगिट बल्टिस्तान, okay, under POK region itself. But this area Gilgit Baltistan region given to whom? China. पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को दे दिया, okay, China. And this area is also known as Saksham Valley. Saksham Valley, अभी मैं आपको ये डिस्कस करूंगा, okay, don't worry about that. मैं आपको कश्मीर की भी हिस्ट्री बता दूंगा इसी में, ओके, गिलगिट बल्टिस्तान का भी पूरा बताऊंगा, सब चीज बताऊंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा। सो दिस इज अफगानिस्तान, दिस मैप पाकिस्तान, ओके, डिस्प्यूटेड रीजंस, समझ में आ रहा है? तो ये पाकिस्तान का मैप है। नाउ we'll start with the history. There are chronology of events in the creation of Pakistan. Okay, तो अभी हमने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट किया था रिसेंटली। ओके, तो अब अगर आप याद करें, सो इन 1906 क्रिएशन ऑफ मुस्लिम लीग। 1906 में क्या होता है? क्रिएशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग फाउंडेड एज ए फोरम फॉर इंडियन मुस्लिम्स सेपरेटिज्म, और ये किसने करवाया था? ब्रिटिशर्स। समझ में आ रहा है? ब्रिटिशर्स। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। मैंने आपको बताया पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, और दो चीजें फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने करी एक्सट्रीमिस्ट को कमजोर करने के लिए। पहला, हिंदू मुस्लिम सेपरेशन, दैट मींस Muslim League created in 1906. Then in 1907, Congress split. Are you getting my point? So in the creation of Pakistan, जो पहला इवेंट है वो क्या है? Creation of Muslim League. ये याद रखिएगा। Then I have told you 1940 Lahore Resolution, Lahore Session of Pakistan, Lahore Session of Pakistan. मैंने बताया था आपको that Muslim League endorses the idea of separate states and the two nation theory concept, okay, coined here in this session itself. okay, two nation theory का जो concept है वो यहीं से शुरुआत हुई, यहां से, ये याद रखिएगा। 1940 session, two nation theory, that means one nation for Muslims, one for Hindus, two nation theory. Are you getting my point? ये याद रखिएगा। Then in finally in 1947 the India got partitioned in two states, that is India and Pakistan. So Muslim state of East, that is Bangladesh, जिसे हम East Pakistan बोलते थे 1971 तक, East Pakistan, okay, West Pakistan, that means Pakistan mainland. समझ में आ रहा है?
So two states were created, that is Muslim state of East and West Pakistan, created out of partition of India at the end of British rule. Hundreds of thousands die in the widespread of communal violence, yes, and millions are made homeless, yes. I have already told you, okay, जो अगस्त में इवेंट हुआ था, ओके, वायलेंस डे हम जिसे बोलते हैं, अगस्त 1946 में जो इवेंट हुआ था, मैंने आपको बताया था, जब कैबिनेट मिशन आ गया था उसी के बाद जिन्ना ने क्या बोला था, अब हम लड़ के पाकिस्तान लेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये याद रखिए, कम्युनल वायलेंस। एंड 1948 मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडिंग लीडर ऑफ पाकिस्तान, डाइड। यस, पाकिस्तान का ये मजा ही नहीं उठा पाए, पाकिस्तान बनाया, इनकी तो डेथ हो गई, मजा ही नहीं उठा पाई। मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडिंग लीडर, ही डाइड in 1948, and the first war with India over disputed territory of Kashmir in the same year itself. Okay, the first war between India and Pakistan after the independence itself, okay, started, ये याद रखिएगा। तो 1948 में क्या हुआ था? फर्स्ट वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कौन से इशू पे? कश्मीर के इशू पे। समझ में आ रहा है? देन नेक्स्ट, नाउ अब एक चीज याद रखिएगा, पाकिस्तान इंडिपेंडेंट कब हुआ? 14 अगस्त 1947, ओके, 14 अगस्त 1947, ये याद रखिएगा। अब पाकिस्तान क्रिएट हो गया, बट इन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आर नॉट स्ट्रॉन्ग, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग नहीं, इसीलिए मिलिट्री रूल आ जाता है बार बार। इंडिया में पढ़े लिखे लोगों ने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके। नाउ यू विल सी आफ्टर द डेथ ऑफ जिन्ना 1951, ओके, 1951 मिलिट्री रूल लग गया पाकिस्तान में। एंड जिन्ना के जो सक्सेसर थे लियाकत अली खान, ओके, देसाई लियाकत पैक्ट पढ़ाया था ना मैंने आपको, ये याद रखिएगा, लियाकत अली खान, ही वाज असासिनेटेड इन 1951, लियाकत अली खान, इनको मार दिया गया, ओके। तो जो 1950s में कॉन्स्टिट्यूशन बना पाकिस्तान का वो डेमोक्रेटिक था, बट 1951 लियाकत अली खान को उड़ा दिया, मार दिया गया, और मिलिट्री रूल आ गया कहां पे? पाकिस्तान में। एंड पाकिस्तान की मिलिट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1956, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोक्लेम पाकिस्तान एज एन इस्लामिक रिपब्लिक। उस कॉन्स्टिट्यूशन ने पाकिस्तान को कैसा बना दिया? इस्लामिक रिपब्लिक, 1956। अब याद रखिएगा 1951 में क्या आ गया है? मिलिट्री रूल। समझ में आ रहा है? And in the after 2 years 1958 martial law declared and General Ayub Khan takes over, okay, जनरल अयूब खान आ जाते हैं, पूरा टेक ओवर कर लेंगे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को। तो मिलिट्री रूल कितना स्ट्रांग है, यही चीज म्यांमार में हुई, यही चीज बांग्लादेश में हुई, बिकॉज द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आर नॉट स्ट्रांग in these countries। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। नाउ आफ्टर 1958, अब जब मिलिट्री रूल आ जाएगा, ओके, मिलिट्री रूल, अब क्या होगा? इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। सो नाउ द फेज स्टार्ट, वॉर एंड अदर डेवलपमेंट्स, वॉर एंड सेसेशन। समझ में आ रहा है? 1965 सेकेंड वॉर होता है इंडिया एंड पाकिस्तान का। इसमें पाकिस्तान को ये लगा कि इंडिया चाइना से हार चुका है 1962 के वॉर में, ओके, एंड दे थॉट दैट इंडिया इज टोटली एग्जॉस्टेड नाउ, सो इट इज द राइट टाइम
ओके, टू वेज अ वॉर ऑन इंडिया। बट उन्हें ये चीज नहीं पता थी कि 1964 शास्त्री जी ने बहुत ही तेजी से प्रोग्राम शुरू कर दिया था डिफेंस प्रिपेयर्डनेस का, और तभी स्लोगन दिया था शास्त्री जी ने, जय जवान जय किसान। जय जवान मींस आर्मी, किसान क्यों? क्योंकि चाइना के वॉर के बाद इंडिया में फैमीन आया, ड्रॉट्स आए, खाने की कमी हो गई, चीजें महंगी हो गई, इन्फ्लेशन। दैट मींस ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हो रही थी। तो दो स्लोगन दिए आर्मी को मजबूत करने के लिए, जय जवान एंड जय किसान फॉर फार्मर्स। समझ में आ रहा है? अब एक चीज याद रखिएगा, पाकिस्तान को लगा कि हम जीत जाएंगे, एंड पाकिस्तान वाज सपोर्टेड बाय यूएसए इन दिस 1965 वॉर। Pakistan was having modernized weapons supported by whom? USA. But India was having old weapons. Then also, India won this war, 1965. Are you getting my point? So, 1965 war, Pakistan was defeated by India. Okay. और 1966 में क्या होता है? ताशकेंट डिक्लेरेशन मीडिएट करता है यूएसएसआर कि भाई वॉर मत करो। ओके, बुलाता है शास्त्री जी को ताशकेंट में, अयूब खान को बुलाता है यूएसएसआर, कहां पे? ताशकेंट में, 1966 ताशकेंट डिक्लेरेशन, एंड फाइनली अ पीस स्टेटस को वाज साइंड बिटवीन whom? इंडिया एंड पाकिस्तान। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। सो मैंने आपको बताया फ्रॉम 1958 till 1969 who was in power? General Ayub Khan and his rigorous policies in Pakistan. ये याद रखिएगा। Then in 1969 General Ayub Khan, he resigned, okay, and General Yahya Khan takes over. Yes, he resigned. समझ में आ रहा है? Why? Because in 1969 the demand of separate nation was started from East Pakistan, that is Bangladesh. क्योंकि जो वेस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान था, अंडर द कंट्रोल ऑफ whom? वेस्ट पाकिस्तान। अब भाई ज्योग्राफी तुम्हारी एडजॉइन नहीं कर रही है। ओके, रूल कहां से हो रहा है? वेस्ट पाकिस्तान से, बांग्लादेश में। एंड फाइनली वहां पे एक पार्टी बनी, आवामी लीग, अंडर द लीडरशिप ऑफ मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश में। और पाकिस्तान ने कहा ठीक है, अगर तुम इलेक्शन जीतते हो तो हम तुम्हें सीट्स दे देंगे पार्लियामेंट में, लीडरशिप दे देंगे। तो लड़ा इलेक्शन किसने? मुजीबुर रहमान ने, एंड ही वॉन दैट इलेक्शन। अब इलेक्शन जब जीत गए तब पावर देने से मना कर दिया किसने? वेस्ट पाकिस्तान ने। एंड फाइनली ऑल द लीडर्स वर अरेस्टेड बाय वेस्ट पाकिस्तान। ओके, अब बांग्लादेश में लीडर्स को मारना शुरू किया गया। ओके, पाकिस्तान स्टार्टेड ऑपरेशन सर्च लाइट। पाकिस्तान ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन सर्च लाइट। ओके, ध्यान दीजिएगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी ये पार्ट है। ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ बांग्लादेश में। सर्च लाइट मींस पाकिस्तान ने ढूंढ ढूंढ के लीडर्स को मारना शुरू किया। ओके, एंड फाइनली द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान and the leaders of East Pakistan, they were arrested, and finally some of the students and leaders, they started one small army. उन्होंने अपनी एक आर्मी बनाई, कौन सी? मुक्ति बहिनी। याद रखिएगा, मुक्ति बहिनी आर्मी बनाई उन्होंने। और
That army was supported by whom? India. And finally India interfered in West and East Pakistan war, and finally the creation of Bangladesh in 1971, और पाकिस्तान को फिर हराया इंडिया ने in 1971 war. So East Pakistan attempts to secede and leading to civil war. India intervenes in support of East Pakistan, which eventually to become Bangladesh. समझ में आ रहा है? और इसमें 90,000 हमने प्रिजनर्स ले लिए थे पाकिस्तान के. अब यहाया खान आए, सॉरी भुट्टो साहब आए, ओके, जुल्फिकर अली भुट्टो. इन्होंने बोला कि हमारे प्रिजनर्स को छोड़ दीजिए वरना जनता जो है परेशानी दे देगी, कि हमारे प्रिजनर, हमारे सोल्जर्स भी चले गए वहां. एंड फाइनली इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, इंडिया ने वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर वापस कर दिए पाकिस्तान को. एंड इस चीज को काफी ज्यादा प्रेज किया गया था. एंड तो कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ था? शिमला पीस अग्रीमेंट विद इंडिया. इन दिस इंडिया had given back prisoners of war, 90,000 prisoners of war to Pakistan. Okay, and it set a new front line in Kashmir. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. And in 1973 populist, okay, new party PPP, People Populist Party है पाकिस्तान की, and Zulfikar Ali Bhutto becomes prime minister. He becomes prime minister. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. तो मिलिट्री रूल अब आप देख सकते हैं 1958 till 1973. Now Zulfikar Ali Bhutto becomes prime minister. Are you getting my point? और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम जब जब पाकिस्तान में मिलिट्री रूल आया है तब तब इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है. ये आपको ध्यान रखना चाहिए. समझ में आ रहा है कि मिलिट्री रूल इज नॉट गुड फॉर इंडिया. ओके, नवाज शरीफ के साथ देखिए कितने अच्छे रिलेशंस थे, बट देन ऑल्सो मिलिट्री स्लोली एंड स्लोली उनकी पावर कम हो रही थी. इमरान खान गवर्नमेंट के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं है. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. नाउ जिया टेक्स चार्ज. ओके, ये याद रखिएगा. अब जुल्फिकर अली भुट्टो कब बने प्राइम मिनिस्टर? 1973. इन 1977 रियॉट्स होता है. ओके, रियॉट्स इरप्ट ओवर एलिगेशंस ऑफ वोट रिगिंग बाय जुल्फिकर अली भुट्टो. सो इलेक्शन में फ्रॉड का इनके ऊपर इल्जाम लगा, एलिगेशंस लगे, एंड फाइनली जुल्फिकर अली भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ओके, इनको हटा दिया जाता है. जैसे अभी ऑन सैन सूकी की गवर्नमेंट को मिलिट्री ने हटाया, वैसे ही उस टाइम पे फिर से पाकिस्तान की मिलिट्री ने 1977 में क्या कर दिया? मिलिट्री कूप. दैट मींस द लीडर्स वर अरेस्टेड एंड फाइनली मिलिट्री रूल was implemented in 1977. तो अभी 1973 में खत्म हुआ था, 1977 में फिर से क्या आ गया? मिलिट्री रूल. एंड दिस टाइम अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल जिया उल हक. ये याद रखिएगा, जनरल जिया उल हक. मिलिट्री कूप. ओके, दैट मींस मिलिट्री रूल. समझ में आ रहा है? ये याद रखिए, जनरल जिया उल हक. ओके, तो ये याद रखिएगा. And 1979, Zulfikar Ali Bhutto hanged amid international protest. इनको फांसी दे दी गई, जुल्फिकर अली भुट्टो को. इंटरनेशनली प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा चल रहा था, करप्ट लीडर को हटाओ. तो अब सोचिए पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कितने ज्यादा वीक है. समझ में आ रहा है? And in 1980 US pledges military assistance to Pakistan following Soviet intervention in Afghanistan. Yes, USSR invaded Afghanistan in 1979. USSR ने invade किया अफगानिस्तान पे 1979. And you know
दिस वॉज द एरा ऑफ कोल्ड वॉर। अब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में इन्वेड किया। अफगानिस्तान में 1973 तक किसकी गवर्नमेंट थी? यूएस सपोर्टेड मोनार्की गवर्नमेंट। ओके, अफगानिस्तान में 1973 तक यूएस सपोर्टेड मोनार्की गवर्नमेंट थी। आफ्टर 1973 यूएसएसआर में, सॉरी, अफगानिस्तान में सोशलिस्ट गवर्नमेंट आ जाती है। दैट मींस प्रो यूएसएसआर गवर्नमेंट। अब प्रो यूएसएसआर गवर्नमेंट जब आएगी अफगानिस्तान में, तो लोग वहां के क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? अब जब सोशलिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ज्यादा प्रोटेस्ट हो जाएगा, तो यूएसएसआर क्या करेगा? अपनी प्रो गवर्नमेंट को बचाने के लिए अफगानिस्तान पे इन्वेड करेगा। अब जब अफगानिस्तान पे इन्वेड करेगा, तो यूएस भी क्या करेगा? अफगानिस्तान पे इन्वेड करेगा, जो यूएस की मोनार्की गवर्नमेंट है। एंड फाइनली दिस लेड इनटू द प्रॉक्सी वॉर इन अफगानिस्तान। ये याद रखिएगा, अब अफगानिस्तान में प्रॉक्सी वॉर शुरू हो जाएगा। किसका? यूएस एंड यूएसएसआर का। यूएसएसआर किसको सपोर्ट कर रहा है? शियाज को। ये याद रखिएगा, यूएसएसआर एंड ईरान बहुत इंपॉर्टेंट अलाय हैं हमेशा से। अब यूएसएसआर किसको सपोर्ट कर रहा है? शिया को, जो प्रो सोशलिस्ट गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की। एंड यूएस किसको सपोर्ट कर रहा है? कॉमन पॉपुलेशन। यूएस हथियार किसको दे रहा है? आर्म्स एंड एमिनिशन किसको दे रहा है? कॉमन पॉपुलेशन को। एंड वो कॉमन पॉपुलेशन जिसने यूएसएसआर की फोर्सेस के अगेंस्ट में लड़ा था, वो कौन थे? वो स्टूडेंट्स थे। जिसने यूएसएसआर के अगेंस्ट में लड़ा था, वो कौन थे जिनको यूएस ने सपोर्ट किया? वो स्टूडेंट्स थे, सुन्नीस थे। अब यूएसएसआर ने उनको आर्म्स दिए, एंड दैट स्टूडेंट्स जिन्होंने यूएसएसआर के, यूएस ने उन्हें आर्म्स दिए, एंड वो स्टूडेंट्स जो यूएसएसआर के अगेंस्ट में लड़ रहे थे विद द सपोर्ट ऑफ यूएसए, यूएसए उन्हें क्या दे रहा था? आर्म्स एंड एमिनिशंस। एंड वही स्टूडेंट्स बन जाते हैं मुजाहिदीन। ओके, वही स्टूडेंट्स बनते हैं मुजाहिदीन। अब यूएस ने तो अपने हथियार बेच दिए, उनका तो बिजनेस हो गया। अब हथियार गलत हाथों में चले गए, वो क्या बन गए? मुजाहिदीन। एंड दैट मुजाहिदीन विल ट्रांसफॉर्म इनटू तालिबान। और वही 1990s में क्या बन जाएंगे? तालिबान। ओके, बिकॉज 1989 में यूएसएसआर अफगानिस्तान से चला जाएगा। ओके, अब मुजाहिदीन को तुमने हथियार दे दिए यूएस ने, यूएसएसआर से लड़ने के लिए, और यूएस भी चला गया 1990s में। एंड फाइनली 1991 बर्थ ऑफ तालिबान। समझ में आ रहा है? तालिबान बना। ये है कहानी, याद रखिएगा। अभी मैं बाद में बताऊंगा जब अफगानिस्तान एंड ये सब पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें याद रखिएगा। तो यूएस ने पाकिस्तान को हेल्प किया, पाकिस्तान को मिलिट्री असिस्टेंस दी, बिकॉज सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान। सोवियत से लड़ना है तो पाकिस्तान को भी हथियार देगा, और वहां की पॉपुलेशन को भी। और टेररिज्म क्या होगा? अब यहीं से रूट्स बन जाएंगे टेररिज्म के। इसीलिए कहा जाता है यूएसएसआर इन्वेडेड अफगानिस्तान, बर्थ ऑफ टेररिस्ट एरा। टेररिज्म का यहीं से शुरुआत होता है। ओके, बिकॉज ये जो कोल्ड वॉर में प्रॉक्सी वॉर मिडिल ईस्ट में लड़े गए, टेररिज्म वहीं से आया। ओके, ये याद रखिएगा। एंड इन 1985 मार्शल लॉ एंड पॉलिटिकल पार्टीज बैन लिफ्टेड। अब मार्शल लॉ, मिलिट्री रूल हट जाता है, एंड बैन जो होता है पॉलिटिकल पार्टी पे, वो हटा दिया जाता है। और कब से? 1977 से 1985 तक। अब आप एक बहुत ही अच्छी चीज देखेंगे इस टाइम पे। वो क्या था सबसे अच्छी चीज? वो ये था दैट बर्थ ऑफ सार्क इन 1985। ओके, सार्क कब बनता है? 1985। एंड सार्क का जब फाउंडिंग मीट हुआ था, तो उसमें पाकिस्तान से किसने रिप्रेजेंट किया था? जनरल जिया उल हक। ओके, जनरल जिया उल हक, ये याद रखिएगा। एंड नाउ दिस सार्क, आइडिया किसका था सार्क बनाने का? बांग्लादेश लीडर, बांग्लादेश लीडर, क्या नाम था उनका? जिया उर रहमान। जिया उर रहमान। This leader, he was the brother of Mujibur Rahman.
ओके, जब बांग्लादेश पढ़ाऊंगा तब ऐसे ही बांग्लादेश की पूरी प्रोफाइल समझाऊंगा। समझ में आ रहा है? ब्रदर ऑफ मुजीबुर रहमान, मुजीबुर रहमान की डेथ हो गई थी 1975 में, उसके बाद मिलिट्री रूल आ गया था अंडर जिया उर रहमान। अब जिया उर रहमान ने क्वाइन किया था वर्ड सार्क, ही क्वाइंड दिस वर्ड सार्क, एंड 1980 से ही बात चल रही थी कि एक साउथ एशिया की ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, एंड फाइनली 1985 एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है सार्क। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। ओके ना, तो मार्शल लॉ हट जाता है, एंड जब मार्शल लॉ हट जाएगा पॉलिटिकल पार्टी से, देन 1986 जुल्फिकर अली भुट्टो की जो डॉटर होती है बेनजीर भुट्टो, शी रिटर्न्स फ्रॉम एग्जाइल टू लीड द कैंपेन फॉर फ्रेश इलेक्शंस। अब इलेक्शंस होंगे, अब बैन हट चुका है, तो जुल्फिकर अली भुट्टो की बेटी आएंगी बेनजीर भुट्टो। समझ में आ रहा है? एग्जाइल से, एंड ये पीपीपी कैंपेन शुरू करेंगी अपनी पार्टी का। एंड 1988 में एक इवेंट हो जाता है पाकिस्तान में, ये याद रखिएगा। 1988 एक इवेंट होता है, वो इवेंट क्या था? जनरल जिया उल हक, ओके, यूएस एम्बेसडर एंड टॉप आर्मी ब्रास, दे डाई इन एयर क्रैश। यस, यूएस एम्बेसडर जनरल जिया उल हक एंड आर्मी पीपल्स, अब ये मर जाते हैं 1988 में एयर क्रैश में। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो अब ये जनरल जिया उल हक चले गए, तो अब गवर्नमेंट बनेगी किसकी? भुट्टो की। समझ में आ रहा है? बेनजीर भुट्टो 1988, ये याद रखिएगा। बेनजीर भुट्टो 1988 पीपीपी, ओके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी wins election in 1988, and in 1990 Benazir Bhutto dismissed as prime minister on charges of incompetence and corruption। बेनजीर भुट्टो को फिर हटा दिया जाता है, ठीक है। अब बेनजीर भुट्टो हटा दी गई बिकॉज ऑन द चार्जेस ऑफ करप्शन एंड इनकॉम्पिटेंस। आप देख रहे हैं ना पाकिस्तान में, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सरवाइव ही नहीं कर पाती है, ओके, बिकॉज ऑफ इनकॉम्पिटेंस एंड वीकर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। समझ में आ रहा है? देन इन 1991 कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर, अब मुस्लिम लीग आएगी। समझ में आ रहा है? 1991 कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, ही बिगिंस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन प्रोग्राम। हमारे यहाँ एलपीजी कब आया? 1991। पाकिस्तान में कब आया? 1991। पाकिस्तान की एक बड़ी अच्छी खास बात है, हमेशा इंडिया को कॉपी करने की कोशिश करिए। अच्छा, इंडिया ये लाया है, हम भी ये लाएंगे। इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, हम भी करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इंडिया में एलपीजी आया, पाकिस्तान में भी आ गया। कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, दे बिगिंस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन प्रोग्राम एंड इस्लामिक शरिया लॉ फॉर्मली इनकॉर्पोरेटेड इनटू लीगल कोड। तो जो शरिया लॉ है इस्लाम का, वो पाकिस्तान का क्या बन गया? लीगल कोड में शामिल हो गया। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। एंड इन 1992 Pakistan government, they launches campaign to stamp out violence by Urdu speaking supporter of the Muhajir Qawmi movement। मुहाजिर कौन है? मान लीजिए जो लोग पहले पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, फिर वो वापस गए कहां? पाकिस्तान, उनको बोला जाता है मुहाजिर। ओके, ये याद रखिएगा। मुहाजिर कौन है? वो लोग जो पहले पाकिस्तान से कहा है? हिंदुस्तान, फिर वो वापस कहा है? पाकिस्तान, उनको क्या नाम दिया गया? मुहाजिर। और इंडिया में भी सेम कॉन्सेप्ट है मुहाजिर का। जो लोग हिंदुस्तान से पहले कहां गए? पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से वापस कहां है? हिंदुस्तान, उनको यहाँ पे मुहाजिर कहा जाता है। इनकी आइडेंटिटी क्राइसिस है, बहुत गलत होता है इनके साथ। समझ में आ रहा है? तो गवर्नमेंट लॉन्चेस कैंपेन टू स्टैम्प आउट वायलेंस बाय उर्दू स्पीकिंग सपोर्टर्स ऑफ मुहाजिर कौमी मूवमेंट। मुहाजिर कौमी मूवमेंट, ये अपने राइट्स की बात कर रहे थे, तो इन्होंने मूवमेंट शुरू किया, ओके। और गवर्नमेंट ने इनको रोकने के लिए क्या किया? एक कैंपेन चलाया। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। एंड फाइनली 1993 प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, ही रिजाइन अंडर द प्रेशर फ्रॉम मिलिट्री। अब मिलिट्री ने प्रेशराइज किया, एंड फाइनली
प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को रिजाइन करना पड़ा। नवाज शरीफ कब आए? 1991 में, जब बेनजीर भुट्टो को डिसमिस किया गया। समझ में आ रहा है? तो ये याद रखिएगा। अब मिलिट्री के प्रेशर में ही रिजाइन एंड जनरल इलेक्शन ब्रिंग्स बेनजीर भुट्टो बैक टू पावर। यस, फिर जनरल इलेक्शन हुए 1993 में। कौन आया पावर में? बेनजीर भुट्टो। ये याद रखिएगा। नाउ 1993 में अब कौन आ चुका है? बेनजीर भुट्टो वापस आ चुकी हैं। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ ये जो एरा है अब न्यूक्लियर टेस्ट का है, इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों जगह। समझ में आ रहा है? न्यूक्लियर टेस्ट। नाउ अब न्यूक्लियर टेस्ट, ओके, फॉर एग्जांपल इन 1996 प्रेसिडेंट लेघारी ही डिसमिस्ड भुट्टो गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ करप्शन एलिगेशन। प्रेसिडेंट ने, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो थे लेघारी, ओके, इन्होंने फिर से भुट्टो गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया करप्शन के चार्जेस पे। मतलब मुझे ना इसीलिए पाकिस्तान का पार्ट इतना इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे गेम होता है ना कि पहले तुम जीतोगे, फिर हम आएंगे, फिर तुम, फिर हम, इस तरीके से चल रहा है पाकिस्तान में। फिर 3 साल के बाद भुट्टो की गवर्नमेंट हट जाती है, करप्शन चार्जेस। एंड देन 1997 सेम इवेंट, नवाज शरीफ ही रिटर्न्स एज ए प्राइम मिनिस्टर आफ्टर मुस्लिम लीग विंस द इलेक्शन। अब मुस्लिम लीग इलेक्शन जीत जाती है और फिर से कौन आ जाएगा? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ किस पार्टी के? मुस्लिम लीग। समझ में आ रहा है? एंड इन 1998 पाकिस्तान कंडक्ट्स इट ओन न्यूक्लियर टेस्ट आफ्टर इंडिया एक्सप्लोड्स सेवरल न्यूक्लियर डिवाइसेस। इंडिया में भी 1998 में हुआ न्यूक्लियर टेस्ट, सैंक्शंस लगे। देखते ही देखते पाकिस्तान भी देख रहा था, अच्छा इंडिया ने किया तो हम भी करेंगे। एंड पाकिस्तान कंडक्ट्स इट्स ओन न्यूक्लियर टेस्ट आफ्टर इंडिया and US imposed sanctions on Pakistan also. समझ में आ रहा है? And in 1999 में Kargil conflict between India and Pakistan backed forces clashed with the Indian military in the icy heights, okay, around Kargil in India, held in Kashmir. Kargil कहाँ है? कश्मीर में। And more than 1,000 people are killed on both the sides. Kargil conflict। कारगिल को कभी वॉर मत कहिए, कॉन्फ्लिक्ट था ये। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। एंड फाइनली इंडिया ये कॉन्फ्लिक्ट भी जीत जाता है। इंडिया वॉन दिस कॉन्फ्लिक्ट, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। एंड इन 1999 एक चीज और हुई थी, नाइनटीन नाइनटी नाइन में क्या हुआ था कि 1999 अप्रैल में, ये याद रखिएगा, अप्रैल में, ओके, मई में नहीं, इससे कारगिल से पहले ही 1999 अप्रैल, बेनजीर भुट्टो, ओके, बेनजीर भुट्टो एंड हिज हस्बैंड दे कन्विक्टेड ऑफ करप्शन एंड गिवन जेल सेंटेंस। ओके, बेनजीर भुट्टो और उनके हस्बैंड को करप्शन के बेसिस पे जेल सेंटेंस मिल गई थी। ये याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? और बेनजीर भुट्टो को देश से बाहर रखा गया था, कंट्री से बाहर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, मैंने आपको बस जानकारी के लिए बता दिया। ओके, नाउ मुशर्रफ। अब मुशर्रफ का एरा शुरू होगा, परवेज मुशर्रफ। समझ में आ रहा है? 1999 अक्टूबर, जनरल परवेज मुशर्रफ सीजेस पावर इन कूप। 1999 अक्टूबर। अब मिलिट्री हमेशा उनकी भड़क जाएगी जब भी वो इंडिया से वॉर हारेंगे। समझ में आ रहा है? कारगिल हुआ, हार गए। अब जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया? पावर ले लिया, कूप से, कूप लगा के, मिलिट्री रूल लगा के। समझ में आ रहा है? एंड इन 2000 अप्रैल, नवाज शरीफ sentenced to life imprisonment on hijacking and terrorism charges over his actions to prevent the 1999 coup। अब नवाज शरीफ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया मिलिट्री रूल ने। इन्होंने हाईजैक किया और टेररिज्म के चार्जेस लगाए गए। कूप को रोकने के लिए इन्होंने टेररिस्ट का सहारा लिया। ये सारे चार्जेस लगाए गए किसके ऊपर? नवाज शरीफ के ऊपर। And finally, Nawaz Sharif, he goes into the exile in Saudi Arabia.
and later in the year, okay, he was pardoned by military authorities. okay, तो पहले लाइफ सेंटेंस मिलती है, उसी के बाद मिलिट्री इनको पार्डन दे देती है। जैसे हमारे यहाँ पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट के पास, तो मिलिट्री अथॉरिटीज ने इनको पार्डनिंग पावर दी, कहा कि ठीक है इनको एग्जाइल में भेज दो सऊदी अरेबिया, लाइफ सेंटेंस मत दो। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें हैं। अब आप देखिए लीडर्स की क्या हालत है पाकिस्तान में, जो भी है मिलिट्री है। समझ में आ रहा है? देन इन 2001 जून, जनरल परवेज मुशर्रफ, he names himself president while remaining head of the army. अब वो आर्मी का हेड भी है और प्रेसिडेंट भी है, परवेज मुशर्रफ, उसने अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिया। एंड in 2001 same year itself in September, President Pervez Musharraf, he supports the US in fight against terrorism and support attacks on Taliban and Al-Qaeda in Afghanistan. US ने उस साल 2001 में तालिबान पे अटैक किया। क्यों किया अटैक तालिबान पे, अलकायदा पे? एक चीज मैं अब आपको यहाँ पे बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि वो जो स्टूडेंट्स थे जिनको हथियार दिए गए थे वो क्या बन गए, मुजाहिदीन, एंड दैट मुजाहिदीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू तालिबान। नाउ इन 1991 तालिबान का बर्थ हो जाता है, एंड 1991 टिल 1996 अफगानिस्तान सिविल वॉर चलेगा। किसके बीच में? तालिबान एंड अफगान गवर्नमेंट के बीच में। एंड फाइनली तालिबान दे एस्टैब्लिश्ड देयर गवर्नमेंट इन 1996। अब अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट होती है 1996 टू 2001, 2001 तक 5 साल के लिए किसकी गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में? तालिबान की। समझ में आ रहा है? एंड अलकायदा भी आ जाता है 1983, ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन कौन था? सऊदी का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था। ओके, एंड उसने क्या बनाया? अलकायदा, वहाबिज्म को फैलाने के लिए। समझ में आ रहा है? अब अलकायदा आ जाता है, एंड फाइनली अलकायदा terrorist organization, they attacked on US 9/11 attack. Okay, 9/11 attack in 2000, sorry, okay, attack 9/11 attack in 2001 on US Pentagon, World Trade Center, CIA हेडक्वार्टर पे किसका हमला होता है? टेररिज्म का, टेररिस्ट का। अब यूएस मारेगा कि तुमने यूएस पे हमला किया, अब तुम मारे जाओगे। और अलकायदा का हाथ होता है उसमें, ओसामा बिन लादेन का। सो यूएस ने सैंक्शन लगाए थे पाकिस्तान के ऊपर 1998 में। अब 2001 में वो सैंक्शन हटा देगा यूएस, एंड पाकिस्तान दे सपोर्टेड यूएस इन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, ओके, अगेंस्ट तालिबान एंड अलकायदा इन अफगानिस्तान। ये याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? तो अब यूएस आया 2001 में, पाकिस्तान के ऊपर से सैंक्शन हटाया, एंड पाकिस्तान की हेल्प से उसने अटैक किया कहां पे? अफगानिस्तान। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। एंड इन 2002 जनवरी, परवेज मुशर्रफ he banned 2 militant groups of Pakistan. परवेज मुशर्रफ he banned 2 militant groups. First, Lashkar-e-Toiba and another one is Jaish-e-Mohammed. Okay, and Parvez Musharraf, he takes steps to curb religious extremism, religious extremism को कम करने के लिए। ये सिर्फ न्यूज में था, बिकॉज यूएस का डर था परवेज मुशर्रफ को कि यूएस अभी यही है अफगानिस्तान में, अगर सपोर्ट किया टेररिज्म को तो हम भी मारे जाएंगे। तो बंद कर दी ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तोयबा एंड जैश-ए-मोहम्मद। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। और जब जैश-ए-मोहम्मद एंड लश्कर-ए-तोयबा को इन्होंने बंद किया, बैन कर दिया, ओके, कर्ब किया इनके मूवमेंट को 2002 अप्रैल। इसके पीछे 2 मोटिव थे। समझ में आ रहा है? पहला यूएस का प्रेशर, दूसरा इलेक्शंस, एंड प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ही विन्स अनदर 5 ईयर इन ऑफिस ऑफ कंट्रोवर्शियल रेफरेंडम। 5 साल के लिए और प्रेसिडेंट वो बन जाते हैं। समझ में आ रहा है? मुशर्रफ 2002 से 2007 तक अब किसका रूल रहेगा? मुशर्रफ का। और अगर इसी टाइम पे आप याद रखें परवेज मुशर्रफ ही आर्मी रूल है, मिलिट्री रूल है पाकिस्तान में, और 2001 में ही पार्लियामेंट अटैक भी हुआ था, इंडियन पार्लियामेंट अटैक। समझ में आ रहा है? जिसमें पूरा हाथ किसका था? जैश-ए-मोहम्मद एंड लश्कर-ए-तोयबा।
ये याद रखिएगा। सपोर्टेड बाय हुम? पाकिस्तान। अब 5 साल के लिए सिर्फ कौन है पाकिस्तान में? मिलिट्री रूल। समझ में आ रहा है? 5 साल के लिए सिर्फ मिलिट्री रूल है। एंड फाइनली परवेज मुशर्रफ, ही वॉन द इलेक्शन फॉर 5 years। समझ में आ रहा है? नाउ थॉ विद इंडिया अंडर परवेज मुशर्रफ। एंड इन 2003 November, Pakistan declares a Kashmir ceasefire and India follows suit। पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया कश्मीर सीज फायर 2003 नवंबर में। समझ में आ रहा है? सीज फायर क्या होता है? एक यूनिलैटरल एक पीस अग्रीमेंट होता है, पीस ऑन द बॉर्डर साइड। समझ में आ रहा है? एंड इन 2003 दिसंबर 2003 में दिसंबर में पाकिस्तान एंड इंडिया अग्री टू रिज्यूम direct air links and to allow overflights of each other plane from beginning of 2004। अब 2 साल के लिए, तो जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था तब 2 साल के लिए बैन कर दिया गया था फ्लाइट्स एंड एयर लिंक्स को। समझ में आ रहा है? बट अब पाकिस्तान ने क्या किया कि बैन हटा दिया कि एयर लिंक्स अब हम दोनों ही शुरुआत करेंगे, फ्लाइट सर्विस शुरू होगी एंड दोनों के ही एयर स्पेस को हम यूज करेंगे। एयर स्पेस मींस कि तुम मेरे एयर स्पेस में से जा सकते हो, निकल सकते हो, और हम तुम्हारे जगह से। समझ में आ रहा है? ये चीज शुरू हुआ। देन इन 2004 February, न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान, he admits to having leaked nuclear weapon secrets to Libya, North Korea and Iran। अब्दुल कादिर खान न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उन्होंने फाइनली एडमिट कर लिया कि मैंने न्यूक्लियर सीक्रेट वेपन बनाने का किसको लीक कर दिया है? लिबिया, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान को। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। एंड इन 2004 जून, पाकिस्तान माउंट फर्स्ट मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट suspected Al-Qaeda militants and their supporters in tribal areas near Afghan border। Yes, पाकिस्तान ने पहला मिलिट्री अटैक किया किस पे? अल-कायदा मिलिटेंट्स पे और उनके सपोर्टर्स पे जो ट्राइबल एरियाज में रहे थे अफगान बॉर्डर के पास। एंड फाइनली यूएस स्टार्टेड यूजिंग ड्रोन स्ट्राइक्स टू टारगेट अल-कायदा लीडर्स इन द एरिया। अब यूएस, पाकिस्तान क्यों मार रहा है अल-कायदा को? बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ यूएस के प्रेशर से। क्योंकि अब 9/11 अटैक किया 2001 में अल-कायदा ने, अब यूएस को कौन चाहिए? ओसामा बिन लादेन। अब ये यूएस तब तक नहीं जाएगा जब तक ओसामा बिन लादेन को पकड़ नहीं लेगा। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। और यूएस ने शुरू किया ड्रोन स्ट्राइक्स, टारगेट किया अल-कायदा को, अल-कायदा के लीडर्स को। 2004 अप्रैल, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान दे अप्रूव्ड क्रिएशन ऑफ मिलिट्री लेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया कि एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए। ओके, और जिसको लेड कौन करेगा? पाकिस्तान की मिलिट्री। ओके, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इंस्टीट्यूशनलाइजिंग रोल ऑफ आर्म फोर्सेस इन सिविलियन अफेयर्स। और इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा कि ये बताएंगे आर्म फोर्सेस को कि कैसे सिविलियन एरियाज में सिविलियंस के लिए काम करना है। बिकॉज रूल किसका था? मिलिट्री रूल था परवेज मुशर्रफ का। समझ में आ रहा है? इसलिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाया गया कि कैसे आर्म फोर्सेस का क्या रोल रहेगा सिविलियन अफेयर्स में। देन इन 2005 अप्रैल, ठीक 1 साल बाद, बस सर्विस स्टार्टेड द फर्स्ट इन 60 years and this bus service operate between मुजफ्फराबाद in Pakistan। okay, मुजफ्फराबाद कहाँ है? पीओके रीजन एंड श्रीनगर, इंडिया। तो बस सर्विस शुरू हुई 60 साल में पहली बार किसके बीच में? पीओके टू आईओके। आईओके मींस इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान बोलता है। मुजफ्फराबाद टू कश्मीर। समझ में आ रहा है? एंड इन 2005 अगस्त, पाकिस्तान टेस्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल। पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल, क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया 2005 में। ये याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? नाउ अब उसी के बाद 2005 में ही एक चीज, कुछ इवेंट्स में बताता हूं। कश्मीर में अर्थक्वेक आया था। ओके, 2005 अक्टूबर में आई गेस अर्थक्वेक
and that earthquake kills tens of thousands people in Pakistani administered of Kashmir. समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा. And finally, Musharraf targets judiciary in 2007 October. Now in 2007 October to November, Pervez Musharraf, he wins presidential election. अब ये फिर इलेक्शन जीत जाता है परवेज मुशर्रफ, बट दिस टाइम इलेक्शन इज चैलेंज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट. अब इलेक्शन, इनके इलेक्शन को चैलेंज कौन कर देता है? सुप्रीम कोर्ट. मिलिट्री रूल है, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ ज्यादा कर नहीं सकता. एंड फाइनली परवेज मुशर्रफ, ही डिक्लेयर्ड इमरजेंसी रूल एंड ही डिसमिस्ड चीफ जस्टिस चौधरी. समझ में आ रहा है? ही डिसमिस्ड चीफ जस्टिस चौधरी. तुरंत मिलिट्री, तुरंत इसने क्या किया? इमरजेंसी रूल लगा दिया. ओके, अब जब इमरजेंसी रूल लगा दिया एंड ही डिसमिस्ड whom? चीफ जस्टिस चौधरी. ये याद रखिएगा. तो इससे पहले कि मैं थोड़ा कहानी बताता हूं, ठीक है, 2007 मार्च में क्या हुआ था? प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो थे, ही सस्पेंडेड चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी. ओके, इनका पूरा नाम क्या था? इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी. ओके, एंड जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में एक वेव ऑफ प्रोटेस्ट आ गया था कंट्री में. ओके, सो इन 2007 मार्च प्रेसिडेंट मुशर्रफ ही सस्पेंडेड चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी. ओके, एंड दिस ट्रिगरिंग अ वेव ऑफ प्रोटेस्ट अक्रॉस द कंट्री. एंड इन 2007 itself, in July, okay, security forces stormed the jihadist occupied Red Mosque. ओके, अब उसी टाइम पे जुलाई 2007 में क्या हुआ? जिहादीज जो होंगे उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया पाकिस्तान की मस्जिद रेड मॉस्क को इस्लामाबाद में. ओके, एंड जब ये इवेंट हुआ तब फिर से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? जस्टिस चौधरी को बुला लिया. सबसे पहले मार्च में इनको डिसमिस किसने किया? परवेज मुशर्रफ ने, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हुआ. ओके, फिर जुलाई 2007 में क्या हुआ? जिहादिस्ट ग्रुप ने रेड मॉस्क को कैप्चर कर लिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने किसको चीफ जस्टिस फिर से बुलाया? बना दिया चीफ जस्टिस चौधरी को ही. एंड 2007 अक्टूबर, अब एक चीज आपको बतानी है, 2007 अक्टूबर में एक और इवेंट होता है. जो हमारी पहले की प्राइम मिनिस्टर थी बेनजीर भुट्टो, शी रिटर्न्स फ्रॉम एग्जाइल, एग्जाइल से वापस आ गई थी 2007 अक्टूबर में. एंड बहुत सारे लोग मार दिए गए थे, सुसाइड बॉम्ब टारगेट किया गया था उनके ऊपर. ओके, तो जब ये याद रखिएगा, एक सुसाइड बॉम्ब टारगेट किया गया था बेनजीर भुट्टो के ऊपर जब वो परेड कर रही थी कराची में. ओके, एंड फाइनली बहुत सारे लोग मारे गए थे. एंड इन 2007 अक्टूबर इटसेल्फ, अक्टूबर टू नवंबर, प्रेसिडेंट मुशर्रफ he won the election, presidential election, but that election is challenged by whom? Supreme Court of Pakistan. And President Musharraf, he declared emergency rule and he dismissed Chief Justice Chaudhary again. ठीक है, चीफ जस्टिस चौधरी को फिर से उन्होंने डिसमिस कर दिया. एंड ही अपॉइंट न्यू सुप्रीम कोर्ट जज. ओके, और उस जज ने रिकन्फर्म किया इनके री इलेक्शन को. ये याद रखिएगा. एंड दैट न्यू सुप्रीम कोर्ट जज कंफर्म्ड हिज री इलेक्शन. ओके, अब उसने कंफर्म कर दिया इनके री इलेक्शन का. अब उसी साल एक और इवेंट हुआ 2007 नवंबर में. जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, ही आल्सो रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल, एग्जाइल से अब वो भी वापस आ गए थे. समझ में आ रहा है? तो बेनजीर भुट्टो के ऊपर तो इन्होंने हमला करवा दिया परवेज मुशर्रफ ने. ओके, तो अब ये याद रखिएगा, तो पहला जब हमला करवाया बेनजीर भुट्टो पे, तो उसमें तो बेनजीर भुट्टो बच गई, लोग मारे गए. 2007 दिसंबर, ओके, 2007 दिसंबर, बेनजीर भुट्टो, शी वाज assassinated. ओके, बेनजीर भुट्टो assassinated at political rally.
समझ में आ रहा है? एट पॉलिटिकल रैली शी वाज असासिनेटेड। ओके, तो अब बेनजीर भुट्टो तो का काम खत्म। नाउ 2008 February to March, February to March। तो जो बेनजीर भुट्टो की पार्टी थी कौन सी? पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। दैट पार्टी नॉमिनेटेड यूसुफ रजा गिलानी, यूसुफ रजा गिलानी। दैट पार्टी, okay, nominated Yusuf Raza Gilani becomes PM at head of coalition with Nawaz Sharif Muslim League। तो पीएम कौन बनता है? गिलानी बनते हैं, यूसुफ रजा गिलानी, क्योंकि कोलिशन पार्टी बनती है पीपीपी एंड मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग का लीडर कौन होता है? नवाज शरीफ। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। एंड फाइनली 2008 अगस्त, 2008 August, President Musharraf resigned after the two main governing parties। अब किसने रिजाइन किया? प्रेसिडेंट मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ ने रिजाइन कर दिया। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। ओके, ये सारी चीजें याद रखिएगा। और अब यहीं से शुरुआत हो जाएगी डेमोक्रेटिक रेजीम की। तो अब एक चीज याद रखिएगा, फ्रॉम 2007। तो अब बाद में क्या करते हैं? नवाज शरीफ अपना सपोर्ट वापस ले लेते हैं कोलिशन गवर्नमेंट से, और बाद में किसकी पार्टी आती है? नवाज शरीफ की पार्टी आ जाती है। ये याद रखिएगा। तो अब जो रूल रहेगा, डेमोक्रेटिक रूल रहेगा, कब से? 2008 टू 2018। ओके, 2008 टू 2018। एंड फाइनली इन 2018 कौन सी गवर्नमेंट आती है पाकिस्तान में? इमरान खान। ओके, इमरान खान, मिलिट्री रूल जिसे हम बोलते हैं। और इसी टाइम पे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे 2008 में ट्राइबल एरियाज टर्मोइल। ट्राइबल एरियाज टर्मोइल 2008 दिसंबर में क्या होता है? इंडिया ब्लेम्स मुंबई अटैक्स इन नवंबर, ओके, ऑन पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट, एंड इंडिया ने डिमांड किया पाकिस्तान से टेक एक्शन। इस्लामाबाद डिनाइड इन्वॉल्वमेंट बट प्रोमिसेस टू कोऑपरेट विद द इंडियन इन्वेस्टिगेशन, कि इंडिया वाले इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, हम उसमें कोऑपरेट करेंगे। समझ में आ रहा है? देन जिसमें कसाब पकड़ा जाता है। समझ में आ रहा है? एंड इन 2009 मार्च, after the days of protest, government yields to demand for reinstatement of judges। अब प्रोटेस्ट चल रहा होता है वहां पे, जितने लोगों को मुशर्रफ ने हटाया होता है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि अब इनको लाया जाए क्योंकि प्रोटेस्ट को खत्म करना है। तो वो सारे जजेस ही आ जाते हैं। एंड 2009 अगस्त, लीडर ऑफ पाकिस्तान तालिबान बैतुल्ला महसूद, he was killed in US drone attack in South वजीरिस्तान। ओके, ये याद रखिएगा। दो तालिबान है, एक तो अफगानिस्तान का, एक पाकिस्तान का तालिबान है, जिसको बोला जाता है तहरीके तालिबान। समझ में आ रहा है? तहरीके तालिबान। एंड दैट तहरीके तालिबान सपोर्टेड whom? ओरिजिनल तालिबान ऑफ अफगानिस्तान अगेंस्ट इंडिया। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। सो द लीडर ऑफ पाकिस्तान तालिबान बैतुल्ला महसूद, he was killed in US drone attack in South Waziristan। एंड बाद में उनके मरने के बाद सक्सीड कौन करता है पाकिस्तान के तालिबान को? हकीमुल्ला महसूद। सब मुल्ला भरे हुए हैं इसमें, हकीमुल्ला महसूद। ओके, एंड दिस सुसाइड बॉम्बिंग इन नॉर्थ वेस्टर्न सिटी, एंड उसी साल क्या होता है? सुसाइड बॉम्बिंग नॉर्थ वेस्टर्न सिटी ऑफ पेशावर, killed 120 people। yes, okay, 120 people। ये याद रखिएगा। सुसाइड बॉम्बिंग, तो जब यूएस ड्रोन को मार दिया, यूएस का ड्रोन मार देता है किसको? तालिबान के लीडर को, पाकिस्तान का बैतुल्ला महसूद। उसी के बाद क्या होता है? सुसाइड बॉम्बिंग होता है पेशावर में। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। नाउ from 2010 April onwards, Parliament approves the package of wide-ranging constitutional reforms। पाकिस्तान की पार्लियामेंट अप्रूव करती कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आने चाहिए। एंड इन दिस constitutional reforms, measures
कौन कौन से लिए गए? दैट ट्रांसफर की पावर फ्रॉम प्रेसिडेंट टू प्राइम मिनिस्टर, की जो पावर्स है वो किसको दी जाए? प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं होनी चाहिए। देन 2011 में जो फाउंडर है अलकायदा का, ओसामा बिन लादेन, ही वाज किल्ड बाय अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस इन अबोटाबाद पाकिस्तान, मार दिया गया। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, ओसामा बिन लादेन। ओके, and in 2013 June, Parliament approved Nawaz Sharif as Prime Minister after his Muslim League wins parliamentary election in May. Yes, 2013 में कौन बनता है प्राइम मिनिस्टर? नवाज शरीफ। ओके, एंड 2013 टू 2018 फिर हटा दिया जाता है करप्शन के चार्जेस पे 2018 में। एंड अब कौन सी गवर्नमेंट आएगी? इमरान खान गवर्नमेंट, मिलिट्री गवर्नमेंट है, मिलिट्री रूल है इमरान खान का। समझ में आ रहा है? इमरान खान गवर्नमेंट, ये याद रखिएगा, राइज ऑफ इमरान खान। Why? Because in 2017 itself, Prime Minister Nawaz Sharif, he was forced to resign, okay, after being disqualified by the Supreme Court over corruption charges, and he is convicted and given a jail sentence again. कितना बार बार ये लोग एक ही चीज में जाते हैं, करप्शन। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। एंड फाइनली इमरान खान पावर में आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो इमरान खान की पार्टी का नाम क्या है? तहरीके इंसाफ। इमरान खान की पार्टी का नाम है तहरीके इंसाफ। लार्जेस्ट सीट मिलती है इस पार्टी को। समझ में आ रहा है? तो ये थी पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब आपका एक बैकग्राउंड क्लियर हो गया कि जब जब मिलिट्री रूल होगा तब तब इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ होगा? पाकिस्तान के साथ। और इंटरनल पॉलिटिक्स की से अब आपको पता चलेगा कि कैसे तालिबान का क्या रोल है, क्योंकि आपको पता है कि अब तालिबान कौन है, कहां से बना, कैसे बना। बैकग्राउंड आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। ओके, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर, देन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा, पहले बैकग्राउंड मजबूत, तब हम पहुंचेंगे कहां? इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। So thank you class, thank you so much.